اس اندر ایک معاہدہ ہوا جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس نگران حکومت کی مرضی کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جلسے جلوس کرنے کا. ابھی پیر کا جلسہ نہیں کرنے دیا گیا اور عمران خان صاحب نے بدھ کا جلسہ کر دیا ہے. ہائی کورٹ میں یہ طے تھا یہ ساری باتیں کہ وہاں ایک ایگریمنٹ ہوا, اس ایگریمنٹ میں یہ طے تھا بتانا ہے. دوسرا جو سب سے اہم ہے جو کل کا آپریشن ہوا ہے, نہ صرف یہ توہین عدالت ہے بلکہ یہ غیر قانونی بھی ہے. توہین عدالت ایسے ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں اس ایگریمنٹ کے تحت طے ہوا تھا کہ اگر کوئی سرچ آپریشن بھی کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار ہوگا ایس پی عمران کشور جو ہیں, ایس پی سیکیورٹی جو ہیں, وہ فوکل پرسن ہوں گے اور یہاں سے شبلی فراز اور علی خان صاحب ہوں گے, ان کے ساتھ بیٹھ کر طے کیا جائے گا. عمران خان صاحب کل جاتے ہیں, تشریف لے کر جاتے ہیں اسلام آباد میں پیشی کے لیے. عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, ان عدالتوں کا احترام کرتے ہیں جن سے نواز شریف 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ 4 ہفتے کے لیے لے کر بھاگ گیا. ابھی بھاگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اشتہاری ہے وہ, اور وہ بھی عدالتوں کے پروسیس سے نکل گیا. اس کے بھی نان بیلیبل وارنٹ جاری ہوئے. کس نے نان بیلیبل وارنٹ جو ہے ایگزیکیوٹ کرا لیے؟ کیا یہ حکومت کرا سکی؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ نان بیلیبل وارنٹ ایگزیکیوٹ کرائے جائیں. اس وقت وہ نان بیلیبل وارنٹ کیوں ایگزیکیوٹ نہیں کرائے جا رہے ہیں؟ پھر کیا ہوا؟ پھر طریقہ کار یہ ہے, پھر اشتہاری ہو جاتا ہے. تو عمران خان صاحب کے معاملے میں اتنی تیزی کہ قانون جو فوجداری قانون ہے اس کی دھجیاں بکھیری گئی. بہرحال عمران خان صاحب نے کہا, ہائی کورٹ میں بھی کہا اور پیش ہوئے. پیچھے کیا واردات ڈالی گئی ہے؟ سرچ وارنٹ کے لیے ابر گل صاحبہ کے پاس جاتے ہیں انسپیکٹر صاحب, انویسٹیگیشن انچارج اور انویسٹیگیشن آفیسر, اور ایک لیڈی کانسٹیبل آفیسر, 2 کی بات, لیڈی پولیس آفیسر. یہ 2 لوگوں نے سرچ وارنٹ کے لیے آنا تھا. کل آپ کی آنکھوں نے دیکھ لیا کہ یہ 2 تھے یا 200 تھے, یہ 2 تھے یا 100 تھے. آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا. یہ 2 یعنی وہ بھی اس لیے غیر قانونی کہہ رہا ہوں, وہ غلط ہو گیا, وہ ان کے اپنے احکامات کی خلاف ورزی ہو گیا. اور اور یہ بھی کہا گیا کہ 6000 معصوم لوگوں کے خلاف پرچہ دے دیا ہے, اور اس میں یہ الیکشن رکوانے کے لیے پکڑ دکڑ کریں گے. اس کا بھی پراپر پروسیجر اپنایا جائے گا, ان کی شناخت کرائی جائے گی, ایسے نہیں پکڑ لیا جائے گا. اب گھر شرارتیں ہیں, گھر چھلانگے. ابھی بھی آج آپریشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں, یہ بھی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہے. ہم نے پٹیشن دائر کر رہی ہے. ابھی ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے گزارش کی جائے گی کہ یہ ممکنہ آپریشن ہونے والا ہے اس کو روکا جائے. علاوہ ازیں توہین عدالت کی درخواست بھی ہے, وہ شاید آج مقرر نہ ہو سکے, وہ کل کی گزارش کریں گے. اور میں آج ایک بڑا مطالبہ کرنے لگا ہوں. یہ نگران حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آئین کے آرٹیکل 218(3) اور 220 کے تحت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے آزاد شفاف الیکشن کرانا. کہاں ہے وہ الیکشن کمیشن؟ کہاں ہے وہ سویا ہوا؟ اٹھے, جاگے, اس نگران حکومت کو روکے کہ جو کچھ بھی کر رہی ہے یہ ان کے مینڈیٹ کے خلاف ورزی ہے. اور امید اور تقاضا ہے اس بات کا کہ یہ کام کیا جائے. خدا را الیکشن کا ماحول بنائیں, الیکشن کروائیں, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف اقتدار کو طول دینے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. دوسرا مطالبہ آپ کے سامنے یہ رکھ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے آئینی اختیارات کا استعمال کرے اور اس سارے معاملے میں انٹروین کرے. اور ہم ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کو لکھیں کہ آپ اس نگران حکومت کو گرا دیں, نکال دیں اس نگران حکومت کو. ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کی جائے گی. جی میں ایک سیکنڈ اچھا, ابھی اطلاعات ہیں. میں تمام پی ٹی آئی کے کارکنان کو یہ آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی زمان پارک کے اوپر بہت گرینڈ آپریشن کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے انہوں نے پھر سے, اور ہمارے بے شمار کارکنان کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں. کافی زیادہ کو اریسٹ کیا گیا ہے. تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں, کل کی جو ہمارے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا, صرف ہماری بھابھی باجی بشرا یہاں پہ گھر پہ موجود تھیں. جس طرح سے چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال ہوا, تو ہم یہ جو جھوٹوں کی ملکہ, یہ جو فراڈ, یہ حرام کے پیسے پہ پلنے والی وہ نالائق جاہل عورت, اس کے خلاف ہم اس کو ایکیوز قرار اس لیے دے رہے ہیں کہ اس کی ایما کے اوپر
आप देख रहे होंगे कि जिस वक्त इधर गेट तोड़ा जा रहा था, दीवारें तोड़ी जा रही थी, घर के अंदर डाका मारा जा रहा था, और लम्हा ब लम्हा वो साथ साथ मैराथन ट्रांसमिशन उसने जारी रखी हुई थी ट्वीट्स की शक्ल में, और वो खूनख्वार एक दरिंदा सिफ्त औरत की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ऐसे ही नहीं लोग अब सोशल मीडिया पे उसको हिंदा कह रहे या कलेजा चबाने वाली डायन कह रहे। वजह यह है कि ये खान साहब के ऊपर कल भी जो ट्रैप था वो असैसिनेशन अटेम्प्ट थी, इसीलिए इन्होंने घर के ऊपर धावा बोला कि शायद खुदा न खास्ता खान साहब तो वहां से वापस नहीं आएंगे। मैं ये आज तमाम कारकुनान को ये बताना चाहती हूँ, मुल्क भर में किसी भी तरह की सूरत हाल के लिए आपने तैयार रहना है। खुदा ना खास्ता अब ये हरकत करेंगे तो अब हम लोग हर जगह पे हरकत में आएंगे इंशाअल्लाह। आप जिसके पास सोशल मीडिया है अभी ये मैसेज फैलाएं कि कारकुनान पूरे मुल्क में तैयार रहें, बस बहुत हो गया। अगर अब इन्होंने हमारे लीडर के घर की तरफ देखा या कोई किसी भी किस्म का ऑपरेशन किया तो ये फिर खुद नताइज को भुगतने के लिए तैयार रहें इंशाअल्लाह। आज हमारे घर में पूरी लाहौर की लीडरशिप के घरों पे छापे इसलिए मारे जा रहे हैं, बेशुमार कारकुनान को इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है कि शायद इनको लगता है कि हमें उठा लेंगे तो आप लोग आएंगे नहीं। ये इनकी भूल आपने खत्म करनी है। अगर हम में से सबको भी उठा लें तो आपने खान साहब के ऊपर पहरा देना है, आप लोगों ने अपने बीवी बच्चों फैमिली समेत यहाँ पे आना है, और ये हमारे जलसे को नाकाम करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं नालायक लोग। ये कैसा अजाब है कि इतने नालायक लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए जो आधे घंटे के आगे देखने की जिनमें अल्लाह ने सकत नहीं रखी। दूर अंदेश तो छोड़ ही दें, जिनको पता है कि अगर अल्लाह ने सबब बना दिया, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा। कल जो तमाशा इधर रचाया गया और जो ड्रामा इस्लामाबाद में रचाया गया, सलूट है, सलाम है हमारे इन भाइयों को जिन्होंने अपनी जान पे खेल के खान की हिफाजत की, और उन बहनों को जो कल यहाँ पे बर वक्त आई। इंशाल्लाह हम अपने लीडर के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं, और हम अपने खून के आखिरी कतरे तक पहरा देंगे, पाकिस्तान को पहरा देंगे। बड़ा जुल्म हुआ, नहीं होना चाहिए था जो कल खान साहब के घर पर रेड किया गया, किया गया, लेकिन उसके साथ रात के टाइम पे लीड की एक गाड़ी जो है वो चलाई गई और उनको एहतियात में रखा गया, पुलिस वाले को मारा गया। क्या उसके मुल्ज़मान आप पेश करेंगे? देखिए बात ये है, कैसा एक्ट कैसा था आपके कारकुनों की तरफ से? हम किसी किस्म के वायलेंस के साथ नहीं हैं, हम किसी किस्म के तशद्दुद के साथ नहीं हैं, और हमारी ये भी इतलात हैं कि यहाँ पर ये जो फाशिस्ट हुकूमत है वो ऐसे लोगों को शामिल कर रही है जिनके ज़रिए वो दंगा फसाद करवाना चाहते हैं। और हमारी ये भी इतलात हैं कि ये पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात को मुलतवी करवाने के लिए ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जहाँ पर ये लोगों की अमलाक का जलाओ घेराव करा कर भी उसका इल्ज़ाम भी तहरीक इंसाफ के ऊपर लगाएंगे। ये हालात को जिस नहज के ऊपर ले चुके हैं, इमरान खान की 26 साला सियासी जदोजहद के अंदर एक पत्ता नहीं टूटा, पुरअमन जदोजहद है। हमारे जो प्रोग्राम होते हैं उनमें खवातीन भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, आप सब ने कवर किए हैं, देखें। नहीं, मेरा सवाल था जी जी सुन ले। पुलिस खुद हमारी मुल्ज़म है, पुलिस इस वक्त हमारी मुल्ज़म है। जिन अफसरान ने कल तौहीन अदालत की, जिन अफसरान ने कल गैर कानूनी इक़दामात किए, गैर कानूनी तौर के ऊपर इमरान खान के घर का दरवाज़ा तोड़ा, वो हमारे मुल्ज़म हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। लिहाजा जिन लोगों ने, हम तशद्दुद के साथ नहीं है, वायलेंस के साथ नहीं है, बार बार हमने अपने कारकुनान को भी ये तलकीन की है, अब भी कर रहे हैं और ऑन द रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारा कोई किसी जलाओ घेराव से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी तहरीक पुरअमन है। हम इंतखाबात चाहते हैं, फौरी इंतखाबात चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो मीठी नींद सोया हुआ है ये उसको जागना चाहिए। देखिए जो कलादम करार देने की बातें कर रहे हैं उनके खुद बैंड आउटफिट्स के साथ ताल्लुकात है। ये जो वजीर दाखिला बैठाया हुआ है इसका बैकग्राउंड आपको पता है कि इसका
बैंड आउटफिट जो दहशत गर्दी की बुनियाद के ऊपर पाबंदी लगी हुई है उनके साथ इसका ताल्लुक है। उसके अलावा ये कालादम का शोर जो इन्होंने डाला हुआ है, इनको ये फिक्र है कि इंतखाबात ना हो, इंतखाबी मैदान में इमरान खान का मुकाबला ना करना पड़े। इसी तरह जो है वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इमरान खान को मैदान से बाहर किया जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये खौफजदा इस वजह से हुए हैं कि इंतखाबात में अवाम इनको अपने वोट से कालादम करार देने जा रहे हैं। एजाजुल हक साहब बाकायदा तौर पर जो मुस्लिम लीग ज़िया है उसको उन्होंने पीटीआई में ज़म कर दिया है और वो बाकायदा तौर पर अभी उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर दिया है और उसकी अभी तस्वीरें भी आपको जारी कर दी। अच्छा, एक और सवाल है कि जिस तरह कल पुलिस ने ऑपरेशन किया सर्च वारंट के बुनियाद पर कि यहाँ पर दहशतगर्द है, यहाँ पर उन्होंने असला छुपाया हुआ है और अब दोबारा इतला दी है कि पुलिस उन्हीं ग्राउंड पर कि जिस तरह से दोबारा यहाँ पर लोग आ गए उनको ये डाउट है कि अंदर यहाँ पर दोबारा से असला है, दोबारा दहशतगर्द आगे छुप चुके हैं। तो क्या अगर वो ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो अब आपकी कदम क्या होगी? हमने तो बताया हम तो जा रहे हैं हाईकोर्ट में पिटीशन लेके जा रहे हैं। ना आप मासूम है ना मैं मासूम हूँ। आप पंजाब पुलिस को भी जानते हैं, उनके हथकंडों को भी जानते हैं। इनके बारे में तो लतीफ़ा मशहूर है कि अगर पूरी दुनिया में अगर कोई चोर ना माने तो इनको भेज दो, ये जाकर हाथी को भी मार मार के मना लेंगे कि उसने चोरी की है। ये इस किस्म की पुलिस है। ये अवाम को क्यों अपने खिलाफ अवाम के जज्बात को कर रहे हैं? ये खुद आग के साथ खेल रहे हैं। जो हो रहा है ज़मान पार्क में, ये मुल्की हालात किस साइड से जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ज़मान पार्क तो अमन चाहता है, ज़मान पार्क तो मुल्क में इस्तेकाम चाहता है, फौरी इंतखाबात चाहते हैं। इमरान खान साहब को ये लेकिन लंदन प्लान के जरिए रास्ते से हटाना चाहते हैं। अच्छा, जो कुछ हो रहा है उस लंदन प्लान के तहत हो। बात मिली है कि जो फरिश्ते जलसे में ना जाने के लिए मुतहरिक रहनुमा और कारकुनान हैं उनकी 2 डिवीजन से 80 से ज़ायद कारकुनान की लिस्ट जारी हुई है और उस पर अमल शुरू हो चुका हुआ है। नादराबाद में भी एडवोकेट उमर तालिब को जो है वो उसके घर छापा मारा गया है। इस पर क्या कहें? फिर मुझे आप ये बताएं कि ये निगरान हुकूमत है? ये निगरान हुकूमत नहीं है, ये निगरानी वालों की हुकूमत है। मैं उनको कहता हूँ छोड़ें, इन चेहरों के आगे क्यों छुप रहे हैं? आप खुद ही आ जाए ना, खुद सामने आ जाएं। हमें भी पता हो ना, अवाम को भी पता हो। वैसे तो ना मालूम है, अब सबको मालूम है। ये भी इतलात है कि शायद 10 से 20 अप्रैल के दरमियान तहरीर कर दी है। मकसद यह है कि मुल्क में एक साथ इंतखाबात, अगर ऐसी तजवीज़ आती है 20 अप्रैल के इंतखाबात का क्या बनेगा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का क्या बनेगा? अच्छा है अगर ये असम्बली तहलील कर दें, क्योंकि आवाम को तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, असम्बली बोझ बनी हुई है। इस असम्बली से आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और अगर मुल्क में सुन लें, अगर मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात के हवाले से कोई सीरियस संजीदा बातचीत होती है तो उसके ऊपर गौर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको आईनी तरमीम दरकार है। ये ज़हन में रखें, क्योंकि हम कोई आइन से हटके कोई गैर आइनी इक़दाम के साथ नहीं खड़े होंगे, लेकिन उसका सिर्फ एक रास्ता होगा, फिर सारी पार्लिमान में मौजूद जमातें इकट्ठी हों, आइन में तरमीम हो, फिर इकट्ठे इंतखाबात हो सकते हैं। यही एक ऐसा रास्ता है जिससे मुल्क को अदम इस्तेकाम से बचाया जा सकता है। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि होश के नाखून लें। बहुत शुक्रिया। अंदर एक मुआहिदा हुआ जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। इस निगरान हुकूमत की मर्जी के साथ एक मुआहिदा हुआ जलसे जुलूस करने का। अभी पीर का जलसा नहीं करने दिया गया और इमरान खान साहब ने बुध का जलसा कर दिया है। हाई कोर्ट में ये तय था, ये सारी बातें कि वहां एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में ये तय था, बताना है। दूसरा जो सबसे अहम है, जो कल का ऑपरेशन हुआ है, न सिर्फ ये तौहीन अदालत है बल्कि ये गैर कानूनी भी है। तौहीन अदालत ऐसे है कि लाहौर हाई कोर्ट में उस एग्रीमेंट के तहत तय हुआ था कि अगर कोई सर्च ऑपरेशन भी करना है तो उसका तरीकाकार होगा। एसपी इमरान किश्वर जो हैं, एसपी सिक्योरिटी जो हैं, वो फोकल पर्सन होंगे और यहाँ से शिबली फराज और अली खान साहब होंगे, उनके साथ बैठकर तय किया जाएगा। इमरान खान साहब कल जाते हैं, तशरीफ लेकर जाते हैं इस्लामाबाद में पेशी के लिए, अदालतों का एहतराम करते हैं।
ان عدالتوں کا احترام کرتے ہیں جن سے نواز شریف 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ 4 ہفتے کے لیے لے کر بھاگ گیا. اب یہ بھاگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اشتہاری ہے وہ، اور وہ بھی عدالتوں کے پروسیس سے نکل گیا، اس کے بھی نان